Dear students, let's formally start the third chapter of history and the first portion of. The title is The Birth of Weimar Republic. The Weimar is a place, a urban center of Germany, and after the First World War, it was established a republic. That's why it's called the Weimar Republic by the name of this township. Let's start formally in the detail. Germany at the time of a powerful empire in the 20th century, and he had fought First World War with Central Powers as terms of, and with Allied forces, allied with England, France, Russia, and joined with enthusiastically, and instead of, and finally European oil resources being stretched with, because it started in the European mainland, but soon after it's turned into the World War, because the boundary of the colonies were also being fought. Germany was initially going to be occupying with the France and Belgium territory, but after the entry of US in 1917, ultimately Germany was defeated, and November 1918, and that up time of treaty table. After a defeat, Imperial Germany abolished the emperorship. The monarch will just leave the country abducted, and the Allied forces have changed the political system and Germany make a republic, and this National Assembly made by Allied forces met at the place of Weimar. So this is called Weimar Republic, and established a democratic constitution and federal structure, adopted a German parliament called Riksdag, and the basis of equal universal vote cast by all adult, including the women. This republic, however, not be received well by its own people. जर्मनी की जनता ने इस रिपब्लिक का स्वागत नहीं किया, ना उसे स्वीकार था. क्यों? बिकॉज दिस पॉलिटिकल सिस्टम वाज मेड बाय द एनिमीज, दुश्मनों के द्वारा बनाया गया, जो जीते हुए अलाइड फोर्सेस के जो लोग थे. तो जर्मनी इज डिफीटेड इन द लेट एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट्स व्हाई द पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू make off and taking off the liabilities and compensation strategy at the French town called Versailles. So with the Allied forces have made a Versailles Treaty. It's called a Versailles Pact also, and this Versailles Pact, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जर्मनी के सारे उसके कॉलोनीज जो थे वो सब अलाइड फोर्सेस के द्वारा छीन ले लिए गए. 10th of its population will cut off, and 13% of the territory and 75% of the iron ore and 25% of coal mines taken from the Germany by French, Poland, Denmark, Lithuania. Allied powers demilitarized Germany and weakened its power. Allied forces ने रूल्स किया कि जर्मनी के पास सेना नहीं रहेगी, वो सेना नहीं रखेगा. डिमिलिटराइजेशन कर दी गई. तो इसकी वजह से जर्मनी में हाईली हरास्ड बाय अलाइड फोर्सेस. एंड गिल्ट कॉज, एक गिल्ट बनाई गई, उसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे वॉर के डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराए, उसको
कंप्लाई की गई और उसको फोर्स किया गया कंपनसेशन के लिए, और कंपनसेशन जो था वो ब्रिटिश पाउंड में 6 बिलियन कंपनसेशन उसके ऊपर लायबल किया गया. एंड अलाइड फोर्सेस आल्सो ऑक्युपाई द रिसोर्स रिच राइनलैंड फ्रॉम जर्मनी का सबसे रिच रिसोर्स जो रूर वैली, जो राइनलैंड कहते हैं, वो सारे एरिया को उन्होंने ले लिया उससे 1920 से के बाद से. एंड जर्मन न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द डिफीट एंड डिस्ग्रेस एट वर्साई. तो जर्मन्स को का नफरत करने का कारण ये था कि German people believe that the Weimar Republic and those people who engage to make this treaty and present as a representative in Versailles, they are responsible for this kind of huge compensation load and disowning and demoralizing the German self-respect and occupying the territory by the neighboring small countries. So the German peoples are very patriotic kind of peoples, and they being felt that they are cheated by their own peoples and demoralizing by the victorious party. So they are very angry and being hard with revenge, एक प्रतिशोध, एक बदले की भावना से भरे हुए थे. Let's start the effects of war on the Germany and throughout Europe. The effects of war, that the war had devastating impact of entire continent. पूरे के पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट पे इस लड़ाई का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा. साइकोलॉजिकली पीपुल्स आर बिकम वेरी mentally disturbed and destroying the because of the sense of social insecurity, and financially और पूरा का पूरा यूरोपियन बम्बार्डमेंट से डिस्ट्रॉय हुआ. और उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप बिकम टू द डेप्ट. जो कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस का हेडक्वार्टर था, वो क्रेडिटर था, वो लोन देता था, वो फंड करता था पूरे वर्ल्ड ट्रेड को, वो डेप्टर बन गया, वो एक कर्जदार बन गया. और इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक, इन्फेंट मतलब शिशु, अभी तो जन्म हुआ था, बीइंग सीन ऑफ दिस ओल्ड एम्पायर. और उसको जो ओल्ड एम्पायर ने जो गलतियां की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंगेज करना, उसकी जो भी गलतियां थी, उन सब के जो पाप जो थे, उसको भोगना किसको था? वाइमर रिपब्लिक को, क्योंकि वो जनता के गुस्से और उनके नफरत की शिकार हुई. द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट, नेशनल ह्यूमिलिएशन, राष्ट्रीय अपमान, और जो लड़ाई में जो 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो कंपनसेशन लूट दिया गया था, इसने फाइनेंशियली क्रिपल्ड कर दिया पूरे के पूरे जर्मन इकोनॉमी को, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. एंड सपोर्टेड वेमर रिपब्लिक मेनी अदर्स. और वेमर रिपब्लिक में जो लोग उसमें पॉलिटिकल ऑर्डर में थे, उसमें बहुत सारे लोग थे पॉलिटिकल ऑर्डर्स में, तो वो सब पॉलिटिकल, दिस पीपल्स आर बीइंग highly hated, just like the Republican, the Socialists, the Catholics, the Democrats. These are being political group departing the Weimar Republic are hated by the German peoples. And the national circles, they are called November criminals. These are called November criminals because in Versailles, the pact or treaty was made in November. So these Democrats, Socialist, Catholics, these are running the Weimar Republic, are called November criminals by the nationalists in Germany.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप के समाज के ऊपर उसका बड़ा गहरा छाप पड़ा। पॉलिसी सोसाइटी, सोल्जर्स बीइंग पेक्ट अदर द सिविलियंस, सोल्जर्स और सिविलियंस सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। पॉलिटिशियंस, पब्लिसिस्ट जो कुछ छापते थे, जो राजनीति करते थे, लेट देयर ग्रेट स्ट्रेस ऑन द एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। आगे चल के उन लोगों ने समाज को इस तरह से ढालने की कोशिश शुरू की जिसमें कि हमें काइंड हार्टेड नहीं, स्टील हार्टेड होना चाहिए, मैस्कुलिन किस्म का, यानी कि बहुत एग्रेसिव होना चाहिए ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि जो बदला ले सके। दे आर जस्ट इमेजिन टू बी एज अ future revenge for. And soldiers lived a miserable life in trenches, trapped, rat feeding and corpus. वो लोगों को, बच्चों को, न्यू यूथ को मीडिया के द्वारा ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करते थे, ट्रेंच लाइफ को महिमा मंडन करते थे ताकि लोग सेना में भर्ती होने के लिए इंकरेज हो। ट्रेंच लाइफ क्या है? जनरली लड़ाई दो तरह की होती है, एक फ्रंट फाइटिंग सीधे सामने सामने, और एक होता है कि जनरली यूरोप के जो कंट्रीज थे उनके बॉर्डर के ऊपर लंबे लंबे टनल्स खोद दिए जाते थे, खाई, उस टनल्स के अंदर छुप के लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उस बॉर्डर मूवी में किस तरह से खाई खोदी गई, उसके अंदर रह के सामने की सेलिंग से बचते हुए लंबे समय तक लड़ाई लड़ती। इसमें कई सालों तक लोग इस ट्रेंच में रहते हैं जिससे घुटनों में घाव हो जाता है, उनके हाथों में घाव हो जाते हैं, धूप नहीं मिलता, बॉडी बोन बैंड कर जाते हैं, उसी में वो मर जाते हैं, कई तरह की बीमारी हो जाती है। लेकिन दे आर ऑल काइंड ऑफ दिस discomfort of life being faced by the sake of nation and the service of the nation। ये सब कुछ ये बर्दाश्त करेंगे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो इस सब चीज़ों को ग्लोरीफाई करना शुरू किया गया मीडिया ने लोगों के बीच में। इस तरह की स्ट्रॉन्ग नेशन, एक तरह से एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, एक स्ट्रॉन्ग एंड डिक्टेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेज करना शुरू किया, जिससे कि जो लिबरल्स थे, जो डेमोक्रेट्स थे, उनको गालियाँ दी जाती थी। पब्लिक यंग जो थे वो उसको पसंद नहीं करने लगे। धीरे धीरे कंट्री जो है वो एक रेडिकल लाइन पे चला गया, और जिसमें कि वाइमर रिपब्लिक ने को ध्वस्त करने के लिए पॉलिटिक्स कल सिस्टम सर्कल से उसको हटाने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पार्टासिस्ट लीग। इट वाज नेशनलिस्ट विंग, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड youth political wing, and they want to change in the country as a Bolshevik revolution type of that was already happened in Russia. So they want this kind of development to be made in many cities. They take political organization, political atmosphere in Berlin will charged with demands of Soviet style of governance. Soviet style of governance they demand for, and opened as a socialist democrats and Catholics, they are the criminals, and the democratic republic to be not the future of Germany. The Weimar Republic being crushed with the uprising of help of war veterans organization called Free Crop. Weimar Republic ने शुरुआत किए जो विद्रोह थे उसको तो दबा दिया, और जो वार वेटरन्स, जो लड़ाई के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनसे बना हुआ एक संगठन था जिसका नाम था फ्री क्रॉप कॉप्स, उसका यूज और सहयोग लेकर उन्होंने इनिशियल रिवोल्ट था उसको तो समाप्त कर दिया। बट एजिटेशन ऑफ फंडेड कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी वगैरह तो चलता ही रहा। बिकम वेरी इनकॉर्पोरेट ऑफ इनेमीज कुड नॉट बी कॉमन कॉज अगेंस्ट द हिटलर। लेकिन ये सब आपस में ही लड़ते रहे। एक बुरी बात ये थी कि these all organizations are struggling for the political stake, but they are not being united against the
their collective enemy. Both have revolutionary militant groups. They have some radical solution they have, but they have all have the very different kind of way to take off. So they are also clashing to each other. And after some time, political radicalization was being very heightened by the economic crisis of 1923. Germany fought largely on the loan, and after some time, uh, the repression of the in the gold का जो दाम गिरने लगा, and depleting gold reserve, the time of reserve is scarce, जिसमें बहुत ही कम था उस समय समाप्त होने लगा. So 1923 Germany refused to pay the French occupy leading area Ruhr and claim their coal. Germany ने कहा कि we have not competent to pay your compensation, and finally it was a very tragic situation. Used to be the printed money, circulation value of the mark fell. पब्लिक से जो सरकार थी वेमर रिपब्लिक, उसके पास कोई रास्ता नहीं था पब्लिक को कंपनसेट करने के लिए. तो दिस गवर्नमेंट हैज recklessly printing the currency. That's why the value of currency being very low, बहुत नीचे चला गया. And it was a time of inflation. It's a hyperinflation. US dollar equal to 24,000 mark in July. It is down at a 3,53,000 mark. Mark is a currency of Germany. And August, it's phenomenal. The 4 million and come to be 98 million mark by December. The figure was run to be the trillion. It is the time to anything to be get for and purchase. They carrying the cat load and currency to be the loaf of bread. ऐसा हो गया कि एक पूरा बैलगाड़ी आप नोट लेके आएंगे तो उससे आपको 2 रोटी मिलेगी. Whole country was under a very tragic situation, जिसकी वजह से जो प्राइस था मार्क था वो बहुत नीचे गिर गया. पब्लिक भूखों मरने लगी. It was future starvation. Then America's come to and help of Germans. So this task was given to the Davis and to help the German economy and a bailout plan. So this is called Davis plan. The Davis plan, it was a plan to help the German economy for sustaining and development and make this country as stable as the people to be survive. सो जनता को सक्षम बनाने के लिए एक पैसे की मदद की गई. Not the aid, it is a loan. It's given, it's a kind of debt given by the American to the Germans to initiate or develop their economy and sustain their currency. The year of depression, next topic, 1924 to 1928, it is a time of world economy was being very almost a stability to be. But after 1928, it start a new kind of economic crisis. The global economic crisis is called Great Depression. Due to this, the investment made by US in German was being withdrawn. वो क्या हुआ कि उसने कहा कि मेरा पैसा दो, क्योंकि 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूएस की इकोनॉमी जो थी वो प्रॉब्लम में आ गई. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, वो कोलैप्स कर गया. और खुद यूएस
जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में आ गई। तो उसने अपने एक्सटर्नल जो डेप्ट थे, जो बाहर पैसे दे रखे थे, जो उसने जर्मन इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब पैसा अपना निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से 24.3 मिलियन शेयर्स विल सोल्ड, और जिससे कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी। उसको फर्दर स्ट्रेंथ देने के लिए यूएस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। तो फॉर्म्स टू बी बैडली हिट, एंड स्पेकुलेटर्स जो है पैसे को मार्केट से निकालने लगे, जिससे यूएस की पूरी इकोनॉमी धराशायी होगी। तो जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिटेड बाई, बिकॉज उसने अपना पैसा निकाल लिया। तो 40% ऑफ 1929 लेवल ऑफ वर्कर्स जो ऑफ पेड रिड्यूस्ड वेज, लोगों की स्थिति खराब हो गई, और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जस्ट टू द अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। उस समय बेरोजगार लोगों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई, जब कंट्री की आबादी मुश्किल से 1.5 करोड़ थी। तो इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक पोजिशन, एंड ऐसा सिचुएशन था कि लोग अपने गले में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पे लिख के लटकाते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कि कोई भी काम दे दीजिए, करके कर लेंगे हम। इस तरह के प्लेइंग कार्ड लेकर सब गलियों में घूमना। दिस पिक्चर, लोग सीट्स, घर नहीं है सोने के लिए, फुटपाथ नहीं, तो रास्ते में रस्सियाँ टांग दी गई, उस पर गर्दन टिका के लोग सोते थे। इट वॉज वेरी बैड situation of the German society. The economic crisis was deep and anxious, the fear of the people. Economic crisis की वजह से जनता बहुत परेशान थी। बिजनेसमैन से लेकर ट्रेडर्स, स्मॉल बिग, सब परेशान थे। उनके सेविंग्स जो थे वो समाप्त हो रहे थे। उनकी जो कंडीशन थी, वो पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रहा, सेविंग डिसमिस हो रहे हैं, रिटेलर्स सफ़र कर रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ही पुअर था जर्मन इकोनॉमी के लिए। बिजनेस जो था वो समाप्त हो गया था, और सेक्शन टू सोसाइटी फील द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। ये प्रोलेटेरियनाइजेशन, इट इज ए सिचुएशन दैट बिकम टू बी इम्प्रोवाइज्ड टू लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास। ये एक ऐसा स्थिति है कि जब कोई वर्किंग क्लास के लोग की जो स्थिति जो है वो इस हद तक ख़राब होती चली जाए कि वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगे। इसी सिचुएशन को प्रोलेटेरियनाइजेशन कहा जाता है। तो इस इज रिड्यूस टू बी द रिस्क रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का जो स्तर था वो धीरे धीरे गिरने लगा, और वो अनएम्प्लॉयड होने के डर से ऑर्गेनाइज टू बी वर्कर, टू बी कीप द वॉट एवर मैनेज टू बी वर्कर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही वर्कर्स जो थे वो थोड़े अच्छे कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी उनको भी एक उनके ऊपर भी एक थ्रेट था। बिग बिजनेस में वाज क्राइसिस, बिग बिजनेस में बहुत क्राइसिस में। सबसे ज़्यादा स्थिति एग्रीकल्चर और वीमेंस की थी। दे आर नॉट एबल टू फीड देयर स्टोमक ऑफ देयर पीपल एंड देयर चाइल्ड्स। अपने बच्चों के पेट भरने की भी स्थिति भी नहीं थी। पॉलिटिकली टू वाइमर रिपब्लिक वाज सो फ्रेजाइल। राजनीतिक रूप से वाइमर रिपब्लिक एक बहुत ही मतलब कि खराब किस्म का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। उसमें कुछ इनहेरिटेंट डिफेक्ट थे। इनहेरिटेंट डिफेक्ट का मतलब होता है जन्मजात दोष, यानी कि जब उस सिस्टम को, जो इस पॉलिटिकल सिस्टम को अलाइड फोर्सेस ने बनाया, उसी समय उसमें कुछ समस्याएं थी। वो हमेशा डिक्टेटरशिप की तरफ हो सकता है कि आगे चल प्रोलॉन्ग रिप्रेशन की तरफ। उसमें एक खराब सिस्टम क्या दिया गया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में अगर 10 तरह के लोग हैं तो वो 10 तरह के लोगों का एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जैसे कोई पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में अगर द ABCDEFGHIJ के इस तरह के सोसाइटी के लोग हैं, तो उसमें अगर वो चलो 10 हटाते हैं, 3 ही रखते हैं। मान लो ABC 3 कम्युनिटी के लोग हैं। फर्स्ट कम्युनिटी के लोग 60% है, सेकेंड कम्युनिटी के लोग 20%, थर्ड कम्युनिटी के लोग अगर मान लीजिए कि 20%, तो इस तरह से टोटल है। तो जब वो इलेक्शन होगा तो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे 60% ए कम्युनिटी के होंगे, उसका 20% नेक्स्ट जो होगा बी, और 20। तो इस तरह से होगा कि तो इसमें हमेशा कंट्री में
एस प्रोपोर्शनल लेवल पे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग रहेंगे, और दे आर नो एनी कम्युनिटी, नो एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी able to take absolute majority, so they are bound to make coalition government, and this government is also being under pressure to work and to survive. तो ये एक कंडीशन था. दूसरा था वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टू टेकिंग द रूल ऑफ दी, एंड दे आर बाउंड टू मेक अ कोलिशन. एंड अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48. एक आर्टिकल 48 की एक समस्या थी कि इट वाज ए इमरजेंसी प्रोसीजर दैट व्हेन द प्रेसिडेंट see that the condition was not working properly, so they introduced the article 48 and imposed the emergency. And all this time you have to say that the cabinet lasting on the average 329 days, and almost article 48 to be introduced, and crisis could be managed. People lost their confidence on democratic parliamentary system, seems to be no solution. और इस तरह की द गवर्नमेंट ऑफ नो गवर्नेंस की बात बात में प्रेसिडेंट रूल ला दिए, बात बात में वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दिए, और कोलिशन की गवर्नमेंट है जो कुछ कर नहीं पा रही है, केवल नाम मात्र की है. तो इस वजह से उन्होंने एक ऐसा गवर्नेंस क्राइसिस के पोजीशन में चलाया कि जनता का डेमोक्रेसी पर से विश्वास ही उठ गया, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही विश्वास उठ गया, और जनता जो है वो डिक्टेटरशिप की सपोर्टर हो गई. और हिटलर तो इसी की प्रतीक्षा में था. नेक्स्ट सेशन फॉर दिस.